Hello students, welcome you all again your 10th standard 9th lecture, okay? And you know very well that successfully we have completed your chapter 1 2 from the first flight as well as Tiger in the Zoo is the poem I taught previously. But these two poems are remained, okay? First one is the Dust of Snow and in my next lecture I will teach you Fire and Ice. Okay, so today I am going to teach you the name of the poem Dust of Snow. It is after the first chapter only, but I haven't taught this. But right now I am teaching this poem. So whenever on the video, if you had seen the poem first, I named the title Tiger in the Zoo. Actually, this is your second poem you can say. Okay. So with this, I am going to start this poem Dust of Snow. As the name suggests, dust of snow means the small particles of the snow. So in our daily routine, we are observing the snow, but it doesn't make any effect on us. Okay, so why the poet named Robert Frost? You know, students, Robert Frost is a very unique poet. He is always making the poet on the nature. That is the speciality, or we can say that unique because of this characteristic. Robert Frost is unique because through the nature he is always providing the good messages of life. Means he is always teaching us that how to appreciate our life in each and every situation. Whatever the consequences we are having, then also we have to face the consequences, seeing the surroundings, and then we can learn from them. As I given the example in my previous lecture that if we are observing sun and moon, on every day the sun is rising and setting. Okay, the moon is coming only after when the sun sets. Means they are following the rules and regulations. As the nature is following the rules and regulations, you know, seasons are also following the regulation. Revolution and rotation of the earth will be there. All the planets are revolving only on their particular path. No one can change their path. Then why should we? Okay, so from this we come to know that the nature gives us a good message that we have to follow it in our life. So with this, I am going to start the poem. As you know by rule, I read this poem first, then I will explain stanza wise. So here students, the name of the poem Dust of Snow. Here it is written by the poet Robert Frost. First stanza says that the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. See, completed. Here the poem is over. Only the two stanzas are given, but in these two stanzas, the great facts of the nature, the poet is explained here. So, now let's go stanza wise. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here the poet is saying that once in the winter season, Robert Frost was very sad and disappointed, and that is why he went in the at the place where one hemlock tree was grown. Now students, see, normally what is happening in the poem, the poets are using the trees like pine, oak, alpine. These type of trees the poet are using while explaining the poems. Why? Because these trees are very beautiful. They look like very beautiful. They are giving us nice messages. But here, the poet had used the hemlock tree. Actually, hemlock tree is a poisonous tree. No one is ready to sit under the tree or ready to go near the tree. Why? Because the tree is poisonous. If we have by mistake eaten some leaves or whatever we by mistake had done, then we have to face. Maybe it causes our death also. So why here Robert Frost has narrated the tree hemlock and the bird he had taken here, students. The bird he is taken that a crow. Normally you have seen that many poems normally using the birds like peacock, then cuckoo. Okay, so many beautiful birds they are using because of their unique speciality. And you know, always they are disgusting the crow. No one is giving the value to the crow. Then why only the poet has narrated two things here? They expresses the sorrow only. And the
woman. So here crow shows crow as well as hemlock tree. Crow is black in color, not looking beautiful. Hemlock tree is a poisonous tree. So why the poet has chosen it? So in the first paragraph of the poet is saying, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Whenever the poet sat under the tree, he was very nervous, as I told you. Not nervous but sad. And he was seated under the tree. And once in the winter season, the crow came over the tree and he shook the dust of snow over the poet Robert Frost. What the crow has done? Crow ने क्या किया? Winter season था, जो poet था Robert Frost was very sad, so he went near the hemlock tree and seated under that tree. वो वहाँ पे बैठा हुआ था. उसी वक्त एक crow पेड़ पे आता है, and you know students, in north region, that is North America, at that side most probably the region is covered with snow. That is why all the trees are covered with snow. And whenever the crow came over the hemlock tree, crow जब वहाँ पे आता है, तो वो crow just shook down the dust of snow over the writer. Actually, his intention was not like that. Crow को थोड़ी कुछ समझ में आता है कि मैं इसके ऊपर ये dust of snow जो है वो गिराऊँ. But as soon as he tried to sit or sat on that branch of the tree, and automatically that dust of snow shoots over the poet. वो जो dust of snow है, snow का जो पार्ट है, particles, वो इसके poet के ऊपर गिरे और वो ऐसे ख्यालों में खोया हुआ था और अचानक से उसके ऊपर ये dust of snow गिरता है. You know, snow by nature is cold, तो उसकी feeling skin कली रहती है और हम लोग को समझ में भी आता है कि इसका क्या है. फिर आगे क्या होता है? Has given my heart a change of mood and saved some part of a road I had rode. Here the writer is saying, as soon as the crow shook over the poet a dust of snow, suddenly his mood had swing. Means what? उसका mood जो है वो change हो गया. वो एकदम दुखी था और ठंडा जो dust of snow उसके ऊपर गिरा तो उसे he feel very, we can say he feels very good. उसको बहुत happiness, contented और happiness feel हुआ अंदर. तो means what? वो जो crow है, he suddenly came over the tree. Its intention was not to disturb the poet, but as soon as he sat there, he shook just the dust of snow automatically, and with this, the mood of the poet had changed. जो poet का mood है, वो क्या हो गया? Change हो गया. फिर उसकी वजह से the poet is now happy, feeling very contented and satisfied. अभी poet को बहुत ही अच्छा लग रहा है, and he is we can say that regretting also. The poet is feeling regretful. Why? Because at previously, whenever the poet was in a bad mood, he was just disgusting his life. वो life को बिल्कुल disgust बोल रहा था. But as soon as the dust of snow followed over him, suddenly his mood changed, and now he is feeling very happy, and he is saying that I am appreciating my life. I come to know that the life is gift that God has given to me, and the nature is teaching me that we have to remain always happy. हमको हमेशा कैसे रहना चाहिए? हैप्पी ही रहना चाहिए. हमें कभी भी लाइफ हमेशा हमें चैलेंजेस देती है. तुम लोगों को मैं बोलती हूँ कि many times what happening, so many questions in the life. Questions means problems we are facing, and whenever we are finding the answers of the question, and once we found the answer, then life changes the question. Means what? कोई भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग सॉल्यूशन डेफिनेटली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, सॉल्यूशन ढूंढते ही है. पर जब हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो क्या हो जाता है? दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है. फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार ये हुआ नहीं, ये शुरू हो गया. मीन्स इस तरह से हमें लाइफ में फेस करना पड़ता है. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव द लाइफ देन? तो कौन सा बेस्ट वे होगा कि हम लोगों को लाइफ को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए. व्हाटएवर वी आर हैविंग, अप्रिशिएट इट. जो भी तुम लोगों को हम लोगों के पास है, जो भी गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करो. गॉड को हमेशा थैंक बोलो. इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे जो थॉट्स है वो भी अच्छे रहेंगे, तुम लोगों को अच्छी माइंड में फीलिंग भी आएगी. इस तरह से जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला है कि किस तरह से उसने अपना जो मूड है वो यहाँ पे चेंज कर लिया. सिर्फ एक डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल. मीन्स अगर स्नो के पार्टिकल्स के अंदर इतनी हिम्मत है या इतनी
एबिलिटी है कि वो हमारा मूड जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम लोग हमारे माइंड को क्यों नहीं समझते? अगर हम लोग हमारे माइंड की साइकोलॉजी ही बदल दें तो ये जो मूड स्विंग है, काफी लोगों को देखो डिप्रेशन में आ जाते हैं। करंटली तुम लोगों ने वो न्यूज सुना होगा कि सुशांत सिंह जो है उसने सुसाइड किया। ओके, अभी उसका रीजन भी पता चला कि उसने सुसाइड क्यों किया। तो एकदम बकवास रीजन था उसका, कुछ भी रीजन नहीं था, पर इतना अच्छा लड़का था वो, इतना अच्छा हीरो था, उसने अपने आप को डिप्रेशन में लाके अपनी लाइफ को एंड कर दिया। नाउ टेल मी, इज इट गुड? नो। व्हाई वी आर एंडिंग आवर लाइफ? यू नो, हम लोगों को 84 लाख अलग अलग लाइफ में से ट्रैवल होके हमें ह्यूमन का एक ही बार जन्म मिलता है। तो अगर गॉड ने 84 लाख लाइफ में से जाके अगर हमें जन्म मिल रहा है तो उसका हमें कुछ यूज करना चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली करना चाहिए। ये बिना 2 टाइम का टेंशन और जो भी है उसकी वजह से हमारे मूड को कभी भी स्विंग चेंज होने नहीं देना है, उसको हमेशा मेंटेन करना है। हाँ, मैं मानती हूँ हम लोग कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसकी वजह से हमारे मूड जो है कोई कितना भी अच्छा करे अच्छा नहीं होता। सो यहाँ पे रूड का मीनिंग है कि रूड यानी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे दिया है रिग्रेट, पछतावा होना। हम लोगों को बाद में पछतावा भी होता है कि अरे मैंने कैसे किया है। मीन्स व्हाट? जो भी तुम्हारे साथ दिख रहा है, तो ज्यादा जो अच्छी चीजें है ना, फोकस ऑन दैट गुड थिंग्स ओनली, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। हाँ, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमें डिसअपॉइंट करती है, इग्नोर दैट एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट थिंग्स। उसमें से कुछ नया सीखो। तुम लोग अगर उसमें से कुछ नया सीखोगे तो इसमें किसका बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली तुम लोगों का। इससे हमारी लाइफ अच्छी होगी। अगर हमारी साइकोलॉजी अच्छी होगी, अगर हम लोग खुश रहेंगे तो हम लोग लाइफ में सारे अच्छे काम कर पाएंगे। हमारे अंदर जेलसी, क्रिटिसिज्म, ऐसी जो बड़ी बड़ी बातें हैं या बड़ी जो खराब चीजें हैं वो नहीं आनी चाहिए। यही यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया है कि नेचर टीचेस अस द रूल दैट ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। हमें हमेशा लाइफ में हैप्पी होना चाहिए और गॉड को क्या होना चाहिए? थैंक होना चाहिए कि तुमने मुझे इतना अच्छा दिया है। समझ में आ रहा है? हम लोगों का लाइफ का रूल है, हम लोग क्या करते हैं हमेशा हमारे लेवल के इंसान को कभी देखते नहीं। हम लोग हमेशा हमारे ऊपर वाले, जैसे एग्जाम्पल में देती हूँ तुम लोग, कोई पैदल चलने वाला कोई इंसान है, ओके, वो किसको देखेगा? जो साइकिल चल रहा है उसको देखेगा कि उसको लगेगा देखो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, उसके पास तो साइकिल है, बराबर। अगर कोई साइकिल चलने वाला इंसान है वो बाइक वाले को देखेगा, एनी टू व्हीलर राइडर, वो कोई भी टू व्हीलर राइडर को देखेगा, उसको ऐसा लगेगा अरे देखो इसके पास तो टू व्हीलर है, मेरे पास तो साइकिल ही है। और कोई टू व्हीलर वाला होगा वो कार वाले को देखेगा, अरे उसके पास फोर व्हीलर देखो कितना मस्त लग रहा है, क्या वर्ड पड़ रहा है उसका। और जो फोर व्हीलर वाला है वो किसको देखेगा? पता है, उसकी जो फोर व्हीलर है ना उसमें जो अच्छी क्वालिटी होगी उसमें हो जाएगा। यानी कि हमारा माइंड कभी सेटिस्फाइड होता नहीं। हम लोग हमेशा बोलते हैं अरे मेरे पास, तेरे पास तो ये, मेरे पास तो ये नहीं, गलत। वहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम लोगों के पास जो है उससे कंटेंटेड रहो ना। चलो एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, दूसरा एवरेज है, तो एटलीस्ट जो एवरेज है उसको ये सीखना चाहिए कि मैं एवरेज तो हूँ, ये पढ़ने की जो क्लेवर स्टूडेंट है उसकी तरह मैं कोशिश जरूर करूँगा। मीन्स वो हमको हमारे मिस्टेक्स से हमेशा सीखना चाहिए, ना कि मिस्टेक्स के ऊपर गुस्सा करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए या कहीं पे भाग जाना चाहिए। नो, नेवर डू दैट थिंग्स। दैट इज व्हाई तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पे एक चीज बताई है कि हम लोगों को सिर्फ क्रो है, क्रो को तो बैड ऐसे बोला जाता है, बैड साइन बोला जाता है, क्रो को कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, तो भी उसने ये राइटर के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट, जिसकी वजह से जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया। देखो चीज इतनी सी थी, क्या चीज थी? डस्ट ऑफ स्नो गिरा और पोएट का जो मूड था, अब तक जो वो दुखी था वो अच्छा हो गया। सडनली इतना सारा चेंज अगर ये डस्ट ऑफ स्नो कर सकता है तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते? वी आर यूनिक कैरेक्टर्स है ना। मैं तुम लोगों को बार बार बोलती हूँ कि हम लोग सब नमूने हैं अलग अलग, सेम हमारे जैसा नमूना दूसरा कोई होगा ही नहीं। इवन हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी हमारे तरह नहीं होते हैं, तुमको भी ये पता होगा। सपोज तुम्हारे कोई ब्रदर्स और सिस्टर्स है, एल्डर और एल्डर, उनमें भी डिफरेंस होता है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई जो मैं हूँ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा बनेगा नहीं, इसलिए मुझे मैं जो हूँ वही मुझे करना है। तो जब हम लोग हमारे इंसान मैं को अंदर से पहचान लेते हैं तब वो ऑटोमेटिकली भी बन जाता है। तो हर बार अगर हम लोग इस तरह से हर एक चीज को पॉजिटिव लेते हैं तो इससे नेचर भी हमको
यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक इंसिडेंट ये है कि यहाँ पे पोएट ने एक एग्जांपल दिया है कि वंस आई वाज सैड एंड इन अ डिजेक्टेड मूड एंड आई वाज जस्ट सैट इन द वरांडा एंड नियर माय हाउस वन ट्री वाज देयर, सो आई सॉ दैट द bird was feeding its young ones. Okay, seeing this I felt very contented, satisfied and happy. Seeing this only means here the example is like that कि जब जो भी है, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने वो बर्ड जो था वो अपने छोटे बच्चों को खिला रहा था, उसको देख के आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि आई हर्ड द चीपिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड की जो आवाज होती है, देखो कभी कभी अगर तुम लोग ये सब कुछ शांत जगह पे हो तो वहाँ पे तुम लोग बर्ड की चीपिंग भी अगर तुम लोग सुनते हो तो तुम लोग को ऐसा लगता है कि आई एम कनेक्टेड विथ नेचर, द नेचर इज कंटेंटिंग मी, मेड मी हैप्पी, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। यानी चीपिंग ऑफ बर्ड ले लो, बर्ड सिंग, देन फ्लावर्स ब्लॉसम, देन फ्लोइंग वाटर, देन ऑल थिंग्स स्विंग्स आवर मूड, ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमारे मूड को चेंज करती है। कभी ऐसा हुआ है कि ये सारी बर्ड, चीपिंग ऑफ बर्ड तुमने सुना, फूल का फ्लावर का ब्लॉसम तुमने देखा, पानी मस्त ऊपर से गिर रहा है, बह रहा है, हम लोग डरते हैं उसको देख के, हम लोग आगे बंद करते हैं, नो, उससे देख के हमारा मूड क्या होता है, चेंज होता है, हमको ऐसा लगता है वाओ सो नाइस, वी आर टेकिंग द साई ऑफ रिलीफ एंड रिलैक्सेशन, हम लोग ऐसे बोलते हैं हाश कितना मस्त है नहीं, कितना अच्छा नेचर है नहीं, तो ये सारा देख के जो हमें खुशी होती है, ये जो मूड जो हमारा चेंज होता है, मीन्स व्हाट, नेचर इज टीचिंग अ लॉट टू अस, नेचर हम लोगों को काफी सारी चीजें सिखाता है और उसी नेचर से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बराबर के लिए स्टूडेंट्स, तुम लोग को ये पॉइंट समझ में आ रही है कि नहीं, मीन्स व्हाट, आवर सराउंडिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर चेंजिंग आवर मूड, वी आर लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर, है ना, हम लोग नेचर के गुजराती में बोलते हैं ना, हमें नेचर ना खोलाમાં રહીએ છીએ, so we are living in the lap of nature and we feel connected, contented and happy with this only, so nature is teaching us all these things. Then tell me what are the bad things in the nature, just imagine, अगर मैं तुमको इतनी अच्छी बातें बता रही हूँ तो बैड थिंग्स कौन सी है, नॉइज, ओके, पॉल्यूशन, डार्कनेस, ये सारी चीजों के देख के हम लोग ऐसे खुश होते हैं नहीं, हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या है, नॉइज सुनते ही कान बंद कर लेते हैं, पॉल्यूशन होता है नाक में कपड़ा बांधते हैं, डार्कनेस होता है तो हमें लाइट लगानी पड़ती है, मीन्स व्हाट, ये चीजें हमें ये बता रही, नेचर हमें बताता है देख मेरे अंदर अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, यू हैव टू सिलेक्ट व्हिच थिंग यू वांट, इजंट इट, हमको सिलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए, नेचर के पास तो सब है, चॉइस इज योर्स कि तुम्हें कहाँ जाना है, नॉइज में जाना है या बर्ड की चीजें सुननी है, चॉइस इज योर्स, पॉल्यूशन में जाना है या तुमको शांत जगह पर बैठना है, चॉइस इज योर्स, मीन्स व्हाट कि तुम लोगों को क्या करना है ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी चॉइस राइट है तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कभी डिसअपॉइंटिंग अवसर फील होगा, तुम लोगों ने मुझे देखा होगा हमेशा, कभी मैंने ऐसे बगासा दिया, कभी मैं ऐसे गई नहीं, हमेशा ऑल इन वन मूड, क्यों, क्योंकि हमेशा मैं किसको देखती हूँ, पॉजिटिव चीजों को देखती हूँ, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, चलो मुझे सीखना चाहिए उससे कुछ, बराबर है नहीं, तो ये सारी चीजें जो हम लोगों को कुछ नया सिखाती है तो इससे हमें सीखना चाहिए, ना कि डिसअपॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे वही बोला है कि when we are watching the flowers bloom, birds sing, flowing water, baby animals, green plants, our thoughts get diverted from our personal sadness and we feel happy. हमारे thought जो है वो bad thought vanishes and good thoughts comes. And who helped for coming this? Good nature. Nature ने हमको help किया. So nature is a good healer and teacher. Heal का मीनिंग है जैसे कुछ वाउंड हमें लगता है तो हम लोग सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा के वो अच्छा जल्दी हील हो जाता है, तो नेचर इज अ हीलर एंड इट इज अ गुड टीचर। मैंने तुमको बोला नेचर के पास सब कुछ है, तुमको क्या सुनना है वो बोलो, तुमको नेचर से क्या चाहिए, तुम्हारी लाइफ में व्हाट यू वांट, तुम लोग सिर्फ नेचर को बोलो मुझे ये चाहिए, सारे रास्ते तुमको खुल जाएंगे। ये फैक्ट है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये कहावत भी है, इंग्लिश में प्रोवर्ब है, जहाँ हमारी इच्छा है, अगर तुम्हारा दिल से वहाँ जाने का मन है, तुमको वो रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मीन्स व्हाट,
अच्छी तरह से ये क्रो और हेमलॉक ट्री जो नेगेटिव माने जाते हैं स्टूडेंट्स, क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सपोज टू नेगेटिव, ऑल द पीपल आर जस्ट रिग्रेटिंग देम, सब लोग उसको ऐसे दूर फेंकते हैं, बट वहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी क्रो, वही हेमलॉक ट्री जो हमें सॉरो और सैडनेस दिखाती है, जो पोएट को हैप्पीनेस बता रही है, मींस व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द पोएट ना, दैट व्हाट ही हैड चूजन हियर, ये पोएट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसने यहाँ क्या चूज किया। अगर वो चाहता तो क्रो को देख के उसका मूड बिगड़ जाता, हेमलॉक ट्री तो पॉइजनस है, उसके नीचे कोई बैठेगा खरी, नो, बट पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो के अंदर कुछ नई चीज देखी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि नहीं, अगर ये चीजें हमें हैप्पीनेस दे सकती है तो हम तो इससे काफी गुना अच्छे हैं। सो यहाँ पे हमारी पॉइंट कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। तुमको इसके क्वेश्चन आंसर्स एक दो ही होंगे हार्डली, टेक्स्ट बुक में तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हैं, अगर डाइजेस्ट में तुमको मिलते हैं या पोएम के अंदर से तो तुम लोगों को वो क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे बोर्ड पे पोएम छोटी होने की वजह से मैंने तुमको एक हेल्प की है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ओके। तो देखो मैंने तुमको फिगर ऑफ स्पीच लास्ट ईयर 9th में अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे, तो जस्ट टेक द रिवीजन ऑफ इट। पहला तुमको एक वर्स दिया है, the way a crow shook down on me, this is the first verse of the poem, so इसका आंसर आता है मेटोनमी। यहाँ पे मेटोनमी क्यों है, because the crow shows the sadness, that is why metonymy is the figure of speech used. Then the dust of snow from a hemlock tree, again hemlock tree comes, it shows the negative things, that is why metonymy means जो चीजों के अंदर hidden meaning होता है, जो हमें अलग मीनिंग एक्सप्रेस करके बताती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटोनमी। थर्ड वन, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, सिनेक्डोन, हियर हार्ट शोज द होल पोएट, है ना, हार्ट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट शोज द होल पोएट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज व्हाई सिनेक्डोन। अदरवाइज एलिट्रेशन, हियर टू वर्ड्स आर रिपीटेड, h and h means has and heart, ha ha, repeat what, that is alliteration, clear? Then second thing, last one, and saved some part of the day I had ruled, so here alliteration only. Now tell me which word is repeated here, that you have to find out. ss is getting repeated, then again which one is, you can see s is repeated here, so this is shows the alliteration. So here very nicely I completed this poem. I hope you understand it very good and very better. Now you have to note down these students whenever you are going to watch this video, okay, on that particular day, just note down these figures of speech in your textbook itself only. There is no need to write the textbook in figure of speech in notebook, because parallel you can write the textbook, because whenever you are going to read the textbook, parallel you can learn the figure of speech. So with this here I am ending my poem, and in my next lecture I will teach you the next poem, first B. Here see, have you seen, I have written first A, that is dust of snow. One more poem will also be there, its name is first B, that is fire and ice. It is also written by Robert Frost, so we will see in the next lecture. Till then